Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. There are different levels of education from pre-primary to the higher secondary level. So while making the curriculum of it needs certain it should be follow some rules and regulations which I have already discussed in the previous class. What type of principles are followed? What are the consideration they used to see that are followed or not while making the content or the curriculum. So here I will discuss today about the agencies who are related directly or indirectly related to the making of curriculum process. So let us move forward. With this presentation, I will say about the history also, that how the process has been developed. So curriculum development in India, how it takes place. So curriculum development is a continuous process. As we all know, it should be a continuous process because there is a development in our society. As we have already understood the principles, it look after the society, students' needs. So always there is a change in the situation and in the environment. For examples, now the from COVID-19 situation, there is a need of more blended curriculum, blended learning system in our curriculum. There should be inculcation of more practical knowledge related to the technology related classrooms. Theory subjects should be less and practical subjects should be more. Means the percentage of theoretical concept should be less than the practical uh, aspect of life skill education should be inculcated in a specific way, should be made compulsory in schools, so that again different new problems are rising regarding different mental health and hygiene. That type of curriculum, that type of content should be included more in the curriculum of students, and in the teacher training courses also it is needed for both the students and teachers. So that's why it is a process of a continuous process which considers the national goal, society aspiration, and disciplinary advance at any given point of time. That's why there is a modification in the curriculum development. So that factors affect in the curriculum development. Then we can also with this developmental process, looking into this recommendation and importance of curriculum development, in 1952-53, Secondary Education Commission was formulated and they have given different recommendations regarding the inculcations of different knowledge, what type of curriculum should be there, what type of education should be there. In the Secondary Education Commission, they have given different recommendations. उसके बाद क्या आया था? Secondary Education Commission के बाद then it comes the Educational Commission, which is given at the 1964-66. They had also given different recommendations regarding to the formulation of curriculum, regarding the formulation of what type of curriculum should be there, how should be the different content should be included. uh, on the basis of that also they have given different recommendations. But the most importantly after that, it the failure of some recommendations in the Secondary Education Commission, कुछ कुछ recommendation जो fulfill नहीं हो पाए थे Secondary Education Commission में, and Education Commission जो 1964-66 ने दिया था, that failure of some recommendation give the implement of the National Policy on Education, NPE, this is the short form, इन द 1968. तो उस चीज का जो रिकमेंडेशन फुलफिल नहीं हुआ, तो उसकी वजह से 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, एंड उन्होंने क्या उस रिपोर्ट ने, उस एक्ट ने, या फिर उस पॉलिसी हम बोल सकते हैं, उस पॉलिसी ने क्या रिकमेंड किया था कि जो स्कूल स्ट्रक्चर है वो स्कूल स्ट्रक्चर शुड बी 10+2 सिस्टम ऑफ स्कूलिंग शुड बी, मीन्स जो स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल है वो कैसा होना चाहिए, 10+2 मीन्स फ्रॉम 1 to 10 क्लास, अगेन जो 2 है दैट वी शुड बी द हायर सेकेंडरी क्लास. तो दे हैव रेकमेंड दैट स्ट्रक्चर. ओके, उसके बाद देखते हैं उन्होंने और क्या क्या बोला था, क्या रिकमेंडेशन क्या था. that they have visualized education to be more closely related to the lives of the people. जो भी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जो भी एजुकेशन सिस्टम कोई भी बना रहा है, तो दैट शुड बी रिलेटेड
more to the lives of people, जैसे कि मैंने बोला according to the societal needs, environmental needs, उस हिसाब से होना चाहिए कंटेंट मैटर को। क्वालिटी शुड बी रेज, क्वालिटी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बोला। देन प्रोवाइड एक्सपांडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, टू प्रोवाइड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को लाना, मीन्स एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करके एम्फसाइज एंड should be given emphasis to the science and technological concept. So उसके अलावा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बोला, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉरल एंड सोशल वैल्यूज को भी डेवलप करने के लिए उस तरह का करिकुलम या फिर कंटेंट मैटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनपीई 1986। उसके बाद देखते हैं द करिकुलम फॉर द 10-year स्कूल, ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। उसके बाद क्या आया था 1978 में एनसीईआरटी का जो उस चीज का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने भी एक फ्रेमवर्क आया, एंड उन्होंने भी उन लोगों ने भी वो जो 10-year स्कूल सिस्टम है उसके लिए जो इन्होंने एनपीई 1968 पॉलिसी ने 10+2 के बारे में बोला, तो एनसीईआरटी उसके बाद आया है 1978 में टू गिव द करिकुलम फ्रेमवर्क देने के लिए फॉर द 10 year ऑफ स्कूल, कि वो जो 10 साल होंगे उसमें कंटेंट मैटर करिकुलम किस तरह से होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस एनसीईआरटी हैज इम्प्लीमेंटेड इन 1978। तो एनसीईआरटी का काम क्या था, बेसिकली द सपोर्टिंग syllabus and textbooks to be used as a model by the state and union territories were also developed। तो एनसीईआरटी खुद ही बुक्स सिलेबस रिलेटेड जो भी क्लास 10 तक जो सिलेबस रिलेटेड बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स बना के दे डेवलप डिफरेंट मॉडल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द बोथ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सब लोग यूज कर पाए, उस तरीका का टेक्स्ट बुक्स डेवलप करने लगे। उसके बाद देखते हैं ऑल आर रिलेटेड विद द ईयर, जैसे कि एनपीसी के बाद एनपीई के बाद एनसीईआरटी आया, उसके बाद क्या आया वो देखते हैं। उसके बाद 1986 या एनपीई which is also a very important national policy on education 1986 that has been revised again, उसको revised करके 1986 में कुछ recommendations फिर से उन लोगों ने दिया। क्या क्या recommendation था? It envisaged a national system of education based on national curriculum framework which would contain common core along with other components that are flexible। Means education system को एक national curriculum framework चाहिए, इसका जिक्र फॉर द फर्स्ट टाइम एनपीई 1986 ने बोला, जो कि अभी हम लोग जब हम लोग प्रीवियस अपकमिंग स्लाइड देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी 2005 का करिकुलम फ्रेमवर्क एक बनाया गया विद द रिकमेंडेशंस गिवन बाय एनपीई। एनपीई इन लोगों ने उस चीज का रिकमेंडेशन दिया था, तो ताकि उस फ्रेमवर्क को, वो कॉमन फ्रेमवर्क को सब लोग इन आवर इंडियन जो भी कंट्रीज स्टेट्स है, इंडियन कंट्री में जितने भी स्टेट्स है वो लोग फॉलो करें। सो इट apart from that it also envisaged removing disparities and equalizing education opportunities by addressing to the needs of disadvantaged section। apart from that जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी या फिर इस चीज को भी उन लोगों ने रेकमेंड किया टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन टू एवरीवन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आया था नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो भी उन लोगों ने डिफरेंट रिकमेंडेशन दिया था एनपीई ने, उसका जो भी रिकमेंडेशन फुलफिल नहीं हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ था जो 1988 में आया था। एंड उस फ्रेमवर्क में क्या इश्यूज या फिर किसके बारे में रिकमेंडेशन किया, दिस फ्रेमवर्क सजेस्ट शिफ्ट फ्रॉम समेटिव इवैल्यूएशन टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अभी समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन इज, जैसे कि वर्ड को देख के ही पता चलता है, सम, SUM सम, जैसे कि मैथ्स के क्लास में सम का मतलब प्लस होता है, तो समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब जैसे कि जो एनुअल एग्जाम जो जितना भी तुम लोग पढ़े हो 1 ईयर में, जो लास्ट में पूरा सम अप करके जो एग्जामिनेशन होता है, इवेलुएट जो टीचर लोग करते हैं या फिर जो इवैल्यूएशन होता है, मीन्स गिविंग वैल्यू टू योर वर्क, जब वैल्यू देते हैं हम लोग, वो चीज हो जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो उस चीज को शिफ्ट करने के लिए किसने बोला था फॉर द फर्स्ट टाइम? नेशनल करिकुलम
फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को ज़्यादा प्रिफरेंस देने के लिए सजेशन दिया था। मीन्स फॉर्मेटिव क्या होगा, मीन्स सम अप या फिर एनुअल एग्जामिनेशन से पहले क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछ के इवेलुएट करना, असाइनमेंट दे सकते हैं, कुछ क्लास टेस्ट ले सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सो दैट हैज बीन सजेस्टेड बाय देम। उसके बाद अटेम्प्ट्स वर मेड to define minimum levels of learning at all stages of school education. School education में minimum levels of learning, जैसे कि क्लास 1 में हम ऑल ओवर सब नॉलेज नहीं दे सकते हैं। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ये सब कुछ भी हमको कंसिडर करके उनको जो भी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है वो ही देना चाहिए। ये चीज भी एलिमेंट्री ये फ्रेमवर्क ने सजेस्ट किया था। उसके बाद देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। उसके बाद यशपाल कमिटी, मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड मे बी, तो यशपाल कमिटी भी उसके बाद आया था, जिसको लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन भी बोला जाता है अदर नेम में। तो वो 1993 में आया था। यशपाल कमेटी का मेन एम ही था कि जो स्कूल बर्डन है, जो स्कूल बैग का बर्डन होता है, किताब भर भर के लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उस बर्डन को किस तरह से कम किया जाए, ये था उन लोगों का या फिर यशपाल कमेटी का मेन एम। तो उन लोगों ने क्या फोकस किया, रेकमेंड क्या वो देखते हैं। वेरी लिटिल fully comprehended content is far better than a great deal properly comprehended content. सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि यू विल गेट अ नंबर्स ऑफ नॉलेज। सो यशपाल कमेटी ने क्या बोला था कि जो भी कंटेंट मैटर हम लोग स्कूल में देते हैं, तो वो चीज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वेरी टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो चीज इतना बेटर हो, वो चीज वो लोगों को मीन्स स्टूडेंट्स दे कैन गेट टू द पॉइंट नॉलेज, रादर देन जो भी पोली या फिर एकदम भर भर के कंटेंट मैटर दे दिया, चैप्टर को बहुत बड़ा कर दिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट या फिर इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लर्निंग विदाउट बर्डन। ईयर याद रखना 1993 में है। उसके बाद देखते हैं क्या आया था। इससे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 भी आया था, उसमें कुछ रिवाइज करके अगेन 2005 में इसको रिवाइज किया गया एंड दे हैव गिवन डिफरेंट लैंडमार्क्स प्रिंसिपल्स कि कौन कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए इन अ स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट में। तो उसमें क्या क्या है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कलेक्टिंग नॉलेज ऑफ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मीन्स जो भी नॉलेज कंटेंट मैटर में है, इट शुड रिलेट विद द प्रैक्टिकल लाइफ, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए।